A very pleasant morning to all of you on the occasion of 7th Yoga Day. I, Aditya Vastogi of Class 4, welcome you all to today's assembly. I would like to call Kushagra Verma to chant the Sanskrit slok. यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव शिरो मदीयं तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्मव्ययम् धन्यवादः A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. I call upon my friend Arohi Srivastav to invoke the blessings of the Almighty. Dear God, thank you for the life you have given me, and into your hands do I commit my life. You are my protector. O Lord, guide and protect me in all my doings. You are my refuge. Please shield me under your wings and deliver me from trouble. As I start my day, be with me, within me. Walk beside me, before me, and behind me. Please give me strength and courage when things go wrong, and help me to find comfort in you, knowing that you, Lord, are in control. Thank you for keeping me safe. Amen. As we begin another day, let us observe 1 minute of silence to reflect upon ourselves and offer our day to the divine. An inspiring thought can spice our day. I now invite Ishal Khan to share the thought for the day. The thought for the day is yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter the flame. Friends, it is time we light this flame, reap the benefits of yoga, and make it a way of life. Well said, my friend. The nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corners of the body. To know more about yoga and its importance in our daily life, I would like to call upon my friend Swara Dikshit. Your body exists in the past and your mind exists in the future. In yoga, they come together in the present. Today, on International Yoga Day, these words of Yoga Guru BKS Iyengar ring true. On September 14, 2014, 177 member states of the United Nations endorsed the appeal by our Prime Minister Shri Narendra Modi to declare a Yoga Day. Since that year, International Yoga Day is celebrated on June 21st every year to raise awareness about this ancient form of holistic wellness. The theme this year is Yoga for Well-being. During these testing times, there is an urgent need to promote both mental and physical well-being. Come, let's embrace yoga, not just on International Yoga Day, but also each day to lead a healthier, mindful, and peaceful life. Thank you. Now, I would like to invite Asha Ma'am, our Vice Principal, to enlighten us with few words. Good morning, everyone. It is a matter of pride for us that yoga, which is an ancient form of practice of our country, revealed by Patanjali in Yoga Sutra, has got recognition worldwide. Why is yoga considered so important? The importance of life is the health of our body as well as of mind. But we can do any other exercise to keep our physical body fit. Then why yoga? Children, yoga is basically about union as its meaning suggests. Not only does it work at physical level,
but also at mental level, unlike any other physical activity. Yoga at the physical level comprises several postures or asanas, which you are aware of, to keep the physical body supple, agile, healthy, and also attractive. The mental techniques in yoga include breathing exercise or pranayama and meditation to discipline the mind for mental well being. When both are done together in union, it brings harmony between mind and body, and you become healthy. Meditation, which is a form of yoga, means quietening oneself and listening to the Creator or to our inner voice. You all had already been practicing silence time or meditation in your classes. When we master it, we start listening to everyone and grasp more. That helps us concentrate in our studies or for any other task. Meditation brings down the agitation and restlessness in us and sets us on the path of a calm and peaceful life. It makes us a kind-hearted, humble, and a compassionate person. Consequently, we do well in all things and also in studies and remain joyful. As it is said in our ancient scripture, Mana prashmanopayo yog ityabhidhiyate. The recourse to pacify the mind is called yoga. In our daily life, when we perform any task with focused concentration, dharana, which is also yoga, where your mind unites with your physical actions. So it is also about doing work with concentration, with lot of care or dhyan. Whatever you do, control and bring all five senses together to perform that task. If you're studying, put focused concentration to that. If you're playing, eating, or doing any other task, put all your attention towards it to its finest details and parts. It will make you successful, you will excel, and finally it leads to perfection. Yoga Karmasu Kaushalam from Bhagavad Gita, which says, Yoga is excellence in action also. Yoga is also about uniting with divine or with yourself. The union with the Supreme through performance of duty in everyday life. So children, offer your day and all your acts to the divine every day. Children, consciously try to incorporate yoga exercises, asanas, pranayam, and meditation in your daily life. For that, you need to be self-disciplined as well. नियम से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और स्वस्थ रहो. Thank you. Thank you, ma'am, for enlightening us. The art of practicing yoga helps in controlling an individual's mind, body, and soul. Let us now enjoy a video in which yoga teachers of our school are displaying different yoga asanas. किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ किसी भी मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों कंधे ढीले, सर सीधा, आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का ख्याल। आपका पूरा शरीर शांत और स्थिर ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। इसका ख्याल रखते हुए मानसिक रूप से अपने आप को योग के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। थोड़ी देर तक शांत और स्थिर बैठे रहने के उपरांत अपनी सजगता को श्वासों पर ले जाइए। आती जाती श्वासों का ख्याल। सजगता भ्रूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर, और फिर दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करेंगे। आँखों पर रखेंगे और धीरे से हाथ को नीचे करते हुए आँखों को खोल लेंगे। हरिओम तस्सत। आज का सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए दोनों पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ करके दोनों पैरों के तलवों को आपस में सटा लीजिए। दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में जोड़कर पैर के उंगलियों के साथ जोड़ दीजिए।
इस अभ्यास को करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, दोनों कंधे ढीले और फिर धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे करेंगे। बहुत ही सहजता से श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को लगभग 15 बार तक करेंगे। बहुत ही आराम से, सहजता से दोनों घुटनों को ऊपर बाजू में सटाएंगे और नीचे ज़मीन में। यह अभ्यास यहाँ पर पूरा हो गया। पूर्ण तितली आसन। इस अभ्यास से हमारे जो जांघ की हड्डियाँ हैं, जांघ के मसल्स हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र। इसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास जो हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं। इससे हमारे डाइजेशन, जो पाचन क्रियाएं हैं, वो बहुत अच्छी से होती हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन का, स्कंद चक्र। दोनों हाथों को सामने, धीरे से एल्बो को बेंड करते हुए, उंगलियों को कंधे के ऊपर, दोनों कहुनी को सटाकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास लेंगे और छोड़ते हुए नीचे। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्कंद चक्र का अभ्यास एक एक राउंड जो है वो हम लोग श्वासों के साथ करेंगे। 12 बार इस अभ्यास को करेंगे हम लोग। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही सहजता से सर सामने की तरफ, आगे झुकाएंगे नहीं। जब हम केहूनी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास को 12 बार क्लॉकवाइज करने के बाद इसको विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार श्वासों की गति रहेगी। श्वास लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दोनों केहूनी आपस में सटेंगे और गर्दन के पीछे दोनों रिस्ट जो है वो भी सटेंगे। स्कंद चक्र। इस अभ्यास से हमारे कंधों पर होने वाले तनाव को हम लोग दूर करते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठते हैं या लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं एक स्थिति में बैठकर, तो कंधों पर जो तनाव होता है उसको हम लोग इस अभ्यास से दूर करते हैं। अभ्यास स्कंद चक्र। अगला अभ्यास हम लोग खड़े होकर करेंगे। उसके लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को आपस में लगभग सटा के रखेंगे। पूरा शरीर संतुलित करेंगे, यानी पूरे शरीर के भार को दोनों पैरों पर बराबर बराबर बांटेंगे और दोनों हाथ कंधों के बगल में ढीला रखेंगे। आँखों को बंद रखेंगे। कुछ देर के लिए शांत स्थिर खड़े रहेंगे। और फिर अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा लेंगे। सामने किसी एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे और हाथों को मोड़कर सर के ऊपर रखेंगे। पूरा शरीर सीधा, संतुलित। जब आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। पैर के उंगलियों पर पूरे शरीर का भार, पूरा शरीर ऊपर, जैसे कोई ऊपर आपको खींच रहा हो। कुछ देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, पैर नीचे की तरफ, फिर श्वास लेंगे। पैर के उंगलियों पर, पूरे पंजे पर पूरे शरीर का भार, हाथ ऊपर ऊपर की तरफ खींचेंगे। चेहरा तनाव मुक्त और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास से हमारा पूरा शरीर खिंचाव उत्पन्न करता है और आराम की स्थिति में जाता है, जिससे हमारे शरीर को आराम महसूस होता है और ये शरीर की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद अभ्यास है। धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचते रहिए। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। श्वास लेंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को लगातार करते रहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को बगल में रख देंगे निकाल करके और फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। ये अभ्यास था ताड़ासन का। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर लेंगे अपने कंधों के बराबर दूरी पर। दोनों हाथों के उंगलियों को फिर से फंसाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे और धीरे से हाथ को पूरा ऊपर सीधा करेंगे। बाह को कान से सटा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, कमर से धीरे धीरे झुकेंगे। श्वास लेते हुए सीधा और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस प्रकार से हम लोग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास 8 बार करेंगे दोनों तरफ। इस अभ्यास को करते समय घुटनों को सीधा रखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे सीधा, फिर श्वास छोड़ेंगे दूसरी तरफ। आप अपनी सहजता के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। इस अभ्यास को 8 बार दोनों तरफ करेंगे और इस अभ्यास से हमारे शरीर के बगल के जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। हाथ नीचे करेंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए फिर से दोनों पैरों को अलग अलग करेंगे, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे और यहाँ पर से दोनों हाथों को घुमाते हुए बाएं हाथ को पेट पर और दाहिनी हाथ को कंधों पर घुमाएंगे और फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ। घुमाते समय ध्यान रखेंगे कि कमर से ऊपर का हिस्सा घूमेगा, कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो स्थिर रहेगा। दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे। इसमें श्वास छोड़ते हुए हम अपने शरीर को मोड़ेंगे पीछे की तरफ, गर्दन भी घुमाएंगे, पीछे देखेंगे, फिर श्वास लेंगे सीधा, श्वास छोड़ेंगे दूसरी तरफ। इस प्रकार से अभ्यास को हम लोग 10 से 12 बार तक करेंगे और पूर्णता की स्थिति में, फाइनल पोजीशन में थोड़े देर के लिए मोड़कर रखेंगे। इस अभ्यास को हम लोग कभी कभी तीव्रता से भी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सामान्य रूप से दोनों तरफ से मोड़ेंगे, बाईं और दाहिनी तरफ श्वास छोड़ते हुए। शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ना है। यह अभ्यास हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से को लचीला बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही उपयोगी आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का अभ्यास यहाँ पर पूरा करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ सटा लेंगे, हाथ को नीचे और सामान्य स्थिति में सीधे खड़े होकर आँखों को बंद कर अभ्यास के प्रभाव को महसूस करेंगे। कुछ क्षण के लिए जो अभ्यास आपने किया इसके प्रभाव को महसूस करेंगे कि शरीर के कौन से अंग में कोई तनाव महसूस हो रहा है, कहीं आराम महसूस हो रहा है, या जैसा भी आपको परिवर्तन हुआ हो उसे महसूस करने का प्रयास करिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे द्विकोण आसन। द्विकोण आसन के लिए दोनों पैरों को अलग अलग फैला के रखेंगे। आप बाईं या दाहिनी तरफ मुड़ सकते हैं। दोनों हाथ को पीछे, उंगलियों को जोड़ लेंगे, पूरा शरीर सीधा रखेंगे, उंगलियों को कसकर पकड़ेंगे ताकि खुले नहीं, और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। अभ्यास द्विकोण आसन। आगे झुकेंगे, फिर धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन सामने की तरफ, फिर धीरे से हाथ को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर श्वास लेते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। हाथ को नीचे करेंगे, धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ। अभ्यास द्विकोण आसन का। फिर से श्वास छोड़ेंगे, हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए
सीधा श्वास लेते हुए सीधा हो जाइए। घुटनों को सीधा रखेंगे, दोनों पैरों के बीच दूरी बराबर बनाए रखेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। श्वास छोड़िए, फिर से आगे की तरफ झुकिए और इस अभ्यास को हम लोग 8 बार करेंगे। जितनी बार आगे झुकेंगे कुछ क्षण के लिए आप रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकिए, हाथ को पूरा ऊपर खींचिए। श्वास लेते हुए फिर से सीधी स्थिति में अभ्यास द्विकोण आसन का। द्विकोण आसन का अभ्यास पूरा हो गया यहाँ पर। और फिर अगला अभ्यास हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए, त्रिकोण आसन में कई वेरिएशन हैं पर हम लोग सामान्य वेरिएशन वाला करेंगे। पहला स्टेप, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और यहाँ से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ करके घुमाएंगे शरीर को। फिर से एक बार सीधा होंगे, वापस दूसरी तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को, वापस फिर सीधी स्थिति में, फिर से दूसरी तरफ। यहाँ पर श्वास लेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ बराबर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास को यहाँ पर पूरा करेंगे और फिर सीधी स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अभ्यास त्रिकोण आसन का। कुछ क्षण के लिए फिर यहाँ पर सीधे खड़े हो करके एक बार शरीर को मानसिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि शरीर के कौन से भाग पर क्या प्रभाव पड़ा। अभ्यास त्रिकोण आसन का पूरा करने के उपरांत कमर पर, कंधों पर थोड़ा तनाव महसूस होता है, उसे वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए स्थिर शांत लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को संतुलित रखेंगे। अगला अभ्यास हम लोग बैठ कर करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में पहले बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में, दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों को मोड़ते हुए दोनों एड़ी को अलग अलग करेंगे, पैर के अंगूठे आपस में सटाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, प्रारंभिक स्थिति दोनों हाथ ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिना कमर को उठाए हुए हाथ सर जमीन पर और फिर धीरे से हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे। पुनः श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे, खींचेंगे, सर को साथ रखते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ। इस अभ्यास को हम लोग 5 बार करेंगे, लेकिन हर बार फाइनल पोजीशन में पहुंचते समय थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इस अभ्यास से हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और इस बार थोड़े समय के लिए रुकेंगे। आराम की स्थिति में शशांक आसन का अभ्यास। फिर से धीरे से हाथ को सीधा करिए और ऊपर की तरफ उठ जाइए, हाथ को नीचे कर लीजिए। यहाँ पर शशांक आसन का अभ्यास समाप्त हुआ। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम में हम लोग
नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम लोग। पहले सीधा बैठेंगे, आँखों को बंद करके, आँखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और फिर नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासाग्र मुद्रा, दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर, 2 उंगलियों को भ्रूमध्य पर और अनामिका रिंग फिंगर को लेफ्ट साइड बाईं साइड नासिका पर रखेंगे। छोटे वाले को ढीला छोड़ देंगे। सीधा नासाग्र मुद्रा। अब यहाँ से बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से छोड़ेंगे। कुछ देर तक बाईं नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे तो दाहिनी नासिका को खोल देंगे और दाहिनी नासिका से श्वास लेकर दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। श्वास लेने और छोड़ने यानी रेचक और पूरक दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। कुछ देर इस अभ्यास को करने के बाद बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ से श्वास लेकर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ी का शुद्धिकरण करते हैं। श्वास को कहीं भी रोकेंगे नहीं, एक फ्लो में श्वास लेकर छोड़ते रहेंगे। बाईं नासिका से लेकर दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेकर बाईं से छोड़ेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक प्राणायाम करने के उपरांत हाथों को नीचे कर देंगे और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों दांतों को हम लोग अलग अलग रखेंगे, ओठ को बंद कर लेंगे। दोनों दांत अलग अलग, ओठ बंद रहेंगे और फिर दोनों उंगलियों से अपने कान को बंद करेंगे। चाहे आप हथेली से बंद कर सकते हैं अथवा उंगलियों से बंद करेंगे। दोनों एल्बो को पूरा खोल करके रखेंगे, सर सीधा रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेकर और भौरे जैसा गुंजन करेंगे अथवा ओम का उच्चारण करेंगे। ओठ हमारे बंद रहेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। सात बार इस अभ्यास को करेंगे। सात बार तक इस अभ्यास को पूरा करने के उपरांत हाथ को नीचे रख देंगे, आँखों को कुछ देर के लिए बंद रखेंगे। बंद आँखों से पूरे मन मस्तिष्क में हो रहे गुंजन को सुनेंगे, उत्पन्न तरंगों को जो आवाज़ों के द्वारा उत्पन्न हुई है उसे सुनने का प्रयत्न करेंगे और फिर दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करेंगे। आँखों पर रखेंगे, धीरे से आँखों को खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। I would now invite our quiz master, Ruhul ma'am, for a fun quiz session. Thank you, Aditya. Good afternoon, everyone.
I'm sure all of us are feeling relaxed after watching such a nice yoga video. So what you're going to do now is we're going to do the fun bit of our assembly where we are all going to play a quiz. Are you ready? Yes? Yes? Okay, great. Now, the link to this Mentimeter has been sent to you all on your class WhatsApp group. I'm going to ask you all 5 questions, all related to yoga. And you're going to get 1 minute to answer it. Now, although you're getting a minute to punch in your answers, please do remember, the faster you answer, the more points you score. Okay? So, of course, you have to answer correctly, but you also have to answer quickly. And at the end of every question, we will show like a small leaderboard slide just to see who's winning and who's doing really well in the quiz. So the first question, which of the following asana can be practiced immediately after having food? Your options are Simhasan, Vrajasan, Swastikasana, and Siddhasana. Come on, children, start punching in your answers. Let's see who gets this one right. Okay, Vrajasan was the answer. Let's see how many of us got that right. Okay, so we have Raghav Agarwal, who is leading, who is the fastest. Very good, Raghav. Everyone else, buck up. Come on, there are 4 more questions left. Everyone has a chance to overtake Raghav. Okay, ready? Let's go. Which of the following is a balancing yoga posture? Okay, your options are Hastapadasana, Ardha Matsyendra Asana, Nataraj Asana, or Ushtrasana. This is a very easy one. You should get this within seconds. Ooh, okay, so 103 of us got this answer right, whereas 157 didn't get it right. Okay, Raghav is maintaining his position, but Kushagra is coming in close. Very good, Kushagra. Keep up the good work. All right, Surya Namaskar is a well-devised combination of dash and breathing. Your options are asana, dhyana, pranayam, and bandha. Okay, so we have a new leader, Kushagra. You're the fastest. Raghav, you need to buck up to retain your position. Which posture makes a wonderful combination of Bhujangasana and Salabhasana? Your options are Sarpasana, Dhanurasana, Halasana, or Chakrasana. Okay, let's see what the correct answer is. It's Dhanurasana. I see Swastik has moved up a point. Very good, Swastik. And this is the last question. So everyone, pay attention and try to punch in the answer as soon as you can. Chakki Chal Asana practice stimulates the dash system. Your options are respiratory system, digestive system, circulatory system, or the nervous system. A little bit of bio and yoga. See how relevant yoga is. Okay, the answer is digestive system. Let's see who's at the leaderboard now. Okay, so Kushagra Kasaudan of grade 4B is our winner. Everyone please give a virtual clap for him. I hope you guys had fun playing this quiz and learned also a little bit about yoga. Thank you for playing this quiz with me. Thank you, Google ma'am, for the amazing session. I would now like to invite Vishwanath sir for an important announcement. सुप्रभातम। योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने योग करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। योगा का क्विज करके उससे भी आपको अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों के लिए एक और विशेष प्रोग्राम है। इसमें आपको योगा करते हुए 2 फोटो अपलोड करने हैं। आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म आया होगा आज मॉर्निंग में, तो उस गूगल फॉर्म को क्लिक करके नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और 2 फोटोज, 2 कॉलम दिए हुए हैं,
दोनों कॉलम में एक एक फोटो बढ़िया योग करते हुए, जो आपका सबसे फेवरेट आसन हो। Thank you, sir, for the information. We shall conclude today's assembly. The shlok by Aryan Sharma. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयान् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।